ابے گدھے، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی کیا؟ فون پر تم سے کہا تھا نا میں تم سے ملنا نہیں چاہتا. سمجھتے نہیں ہو کیا؟ ڈرو، اگر مجھے مہمان بناؤ گے تو سب بات یہیں رہے گی. بہت غلط فہمی ہے تمہیں. اس طرح نہیں، اتنے اکیلے. واہ واہ واہ، تمہارے باپ اور تمہاری بیوی پر قربان جاؤں. محمود صاحب، جلدی جلدی بات کرو اور پھر چلتے پھرتے نظر آؤ. تم کو پتا ہے شاہین، قسم کھانے کو تیار ہوں کہ تمہارا باپ تمہاری طرح اکیلا نہیں آ سکتا. تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. بھول گئے ہمارے درمیان کیا معاہدہ ہوا تھا؟ بڑی فکر ہے. ڈرو نہیں، تمہارے لیے جگہ نکالی ہے کہ تم بہادری کے پاس جاؤ اور بازار کے لوگوں سے معذرت کرو، اپنے باپ کے سامنے اور بازار والوں کے سامنے. میں جا کر اس کچرے کے ڈبے سے معافی مانگوں؟ دیکھو، یہ صحیح راستہ ہے. جو بکواس تم نے کی ہے تو معافی بھی مانگو جا کر، کیونکہ تم ہی کر سکتے ہو. مسئلہ دینا کا نہیں ہے، مسئلہ بہادری کا ہے. بہادری بالکل ایک ہارے ہوئے کتے کی طرح پاگل ہوا ہے. میری معافی سے بھی کوئی علاج نہیں ہوگا. مگر کیوں؟ اس لیے کہ چچا نے بہانے سے میرے بابا کے سامنے بہادری کا مسئلہ لا کھڑا کیا. دفتر آئے تھے اور مجھے اس طرح ذلیل کیا کہ میں چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا. میرے بابا کے سامنے بہادری کا مسئلہ بیان کر دیا. البتہ تمہارے بابا کچھ اور سوچ رہے ہیں. یعنی کیا اس کا علاج سوچ رہے ہیں شاہین؟ یعنی تمہارے بابا کے جانے کے چند سیکنڈ بعد میرے بابا نے بہادری کو فون کیا اور اس کے باپ دادا کو سنائی. ہماری طرف سے خیر ہی خیر ہے. میں کہتا ہوں شاہین، یہ جو تمہارا بڑا بھائی ہے نا رامین، اس نے جو مصیبت کھڑی کی ہے وہ بلا وجہ کی ہے. بلا وجہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دو. اگر میں تمہیں دھوکہ نہیں دیتا تو رامین بھی نہیں دیتا ہے. وہ تو سب صحیح ہے، لیکن جو کچھ بھی تمہارے گھر میں ہے، ہم رامین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کیا کیا کہہ گیا. یہ سب تم اپنی مرضی سے بتا رہے ہو. ہو 100 دفعہ کہا ہے کہ کچھ مجھ سے بات کرنے میں احتیاط کیا کرو. پتہ نہیں ہے الٹے پلٹے آدمی. بابا آئے تو میں نے دینا کو راضی کر لیا ہے کہ اس کو یہاں لے کر آئے، پر میں کہتا ہوں بیٹھو، بیٹھ کر بات کرو تاکہ ہماری باتوں کا کوئی حل نکل سکے. مجھے پتا ہے تم میرا خیال کرتے ہو، لیکن تمہارے بابا کی قسم کہ دینا انسان نہیں ہے جو تم اسے یہاں لے کر آ رہے ہو کہ اس سے کچھ باتیں کر لوں. وہ جو تم بہادری کے ساتھ کر رہے ہو، وہ بھی ایک لڑکی ہے جو کہ چوہے کی طرح اپنے باپ سے ڈرتی ہے. تم کو پتا ہے شاہین، میری بات غور سے سنو. ایک بار ایک خط لکھو، محبت بھرا، شاید اسے کوئی رحم آ جائے تم پر. زیادہ بکواس مت کرو. صرف یہ طے ہوا تھا کہ دینا کو ایک دفعہ یہاں لے آؤ. میں اس سے 2 باتیں کروں گا، اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گا. ایسا لگے گا کہ میں تمہاری شادی دیکھوں اور تمہارے بچوں کو یونیورسٹی جاتے دیکھوں. ایسا ہی ہوگا. ذرا وہ چمٹا دو. تم کو پتا ہے تمہارا مسئلہ کہاں سے خراب ہوا ہے؟ جتنا تمہارا بڑا بھائی میرے بابا کے آگے پیچھے گھومتا ہے، ان کے کام کرتا ہے، تو پھر تمہاری کوئی جگہ بچتی ہی نہیں ہے. ہاں، اور تم ابھی مجھے جذباتی کر رہے ہو. شاہین، بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نہ کھیلیں. ہم دونوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ دینا اور بابا جان سے بہانہ تلاش کر رہے تھے تاکہ نہیں کا جواب دے سکیں. محمود تم جا کیوں نہیں رہے؟ مجھے پتا ہے کہ ایک بار تم اپنا منہ بند رکھو. کوڑے کا ڈبہ ہے تمہارا منہ. ایک بار تم سے کہا کہ دینا کو یہاں لے آؤ، میں اس سے صرف 2 باتیں کروں گا اور اپنا دل ٹھنڈا کروں گا. یا حساب کتاب رامین کو دے دو کہ تمہارے گھر آ جائے صرف افطار کرنے. یہ تو وہ وعدہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. شاہین، باقی اس طرف کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو خوشی کی اور ہم کو پتا چلے. چاہے ہو یا نہیں ہو، تم سے کیا مطلب. کھا نہیں رہے؟ سوچ رہا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اہل معاملہ کے سامنے کچھ نہیں بولوں. نکلو یہاں سے. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حاجی، حاجی، بجائے اس کی کہ آپ ہمیں سحری کے لیے اٹھائیں، آپ اٹھیں، گھڑی بج رہی ہے، آدھے گھنٹے بعد اذان ہے. محمود، اگر سحری کھانا ہے تو اٹھ جاؤ. آپ نے اس رامین سے کل اور پرسوں بھی بات نہیں کی، تو پھر کب تک دکان کا دروازہ بند رکھیں گے اور اس سے بات نہیں کریں گے؟ یہ لڑکا ہو سکتا ہے کہ ابھی بازار کے سامنے ہو. سر کو نیچے کرو اور اس کے پاس سے گزر. نہیں، آپ کو خدا کا واسطہ صرف ایک ترچھی نظر اس پر ڈالوں گی. بے وقوف. بہادری، تم فون کاٹو، میں کال کرتا ہوں. اگر اس طرح تم پر ہمارے پیسے رہیں گے تو ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. میں ان سب باتوں سے تنگ آ گیا ہوں. بلا وجہ تم نے مجھے اور میرے کام کو اتنی گالیاں دیں. واللہ اگر صرف مجھے گالیاں دی ہوتی تو میں تم سے کہتا کہ بندہ خدا، میری غلطی تھی، ہم نے تمہارا حق پامال کیا. واللہ تمہارا حساب کتاب ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا. بہادری، میں خود تم سے چیک لیتا ہوں، پھر بھی گالی دو گے کیا؟ یعنی کیا یہ اس سے چیک لے رہا ہے؟ دادا جان، دیکھ نہیں رہی؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رامی نے چیک دے دیا یا نہیں. بہت اچھا. ابھی آپ اس سے پوچھیں گے، پھر 2 گھنٹے بعد اس کی ماں کو فون کر رہی ہوگی. میں لوگوں کے حق و حقوق کی بات کر رہا ہوں. بہت اچھا، تو اسی اپنے رامین سے پوچھ لیجیے. اس کو پتہ نہیں کہ یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں. چلے. بہادری میرے بھائی، تمہیں جو میں نے لات ماری تھی اس کے لیے ہو سکے تو مجھے معاف کر دو. کیا بات ہے شاہین میاں، یہ باپ کیا ایک سے جلتا ہے، کیا کیا کام کرنے پڑ رہے ہیں. اس وقت ہم کو کوئی کام نہیں. کہو 7-8 دن میں آسان ہے، اگر 7-8 سال بھی لگ جائیں تو ہم انتظار کریں گے. شکریہ شکریہ. آدمی مچھلی کی طرح پیترے بدل رہا ہے. دیکھو، آخر یہ کون ہے جو دوپہر سے کال کر رہا اور تم کاٹ رہے ہو؟ میرا ایک دوست ہے جس سے طے ہوا تھا کہ 7 دفتر کال کریں گے. وہ اس طرف چلا جائے اور اس طرف میرا موبائل اس کے ہاتھ میں ہوگا. ارے، موبائل دوست کے ہاتھ میں دو گے؟ غلطی کر دی، لیکن یہ کہہ دیا ہے کہ نمبر کسی کو نہ دے. اچھا، یعنی بہت اچھا دوست ہے. مگر بیٹے، موبائل کام والے آدمی کی عزت کی طرح ہوتا ہے، ہمیشہ ہاتھ میں رہنا چاہیے. اس بہادری کی کوئی خبر ہے؟ ڈاکٹر نے تو کچھ نہیں بتایا. مجھے نہیں لگتا کہ بہادری آئے اور آواز پیدا نہ ہو کہ آپ کو پتہ نہ چلے، ہے نا؟ وہ باتیں جو میں نے اسے فون پر کی تھی، کوئی بے غیرت بھی اس کی جگہ ہوتا تو دفتر آتا اور گریبان سے پکڑ لیتا. اور یہ بہادری اتنے آرام سے بیٹھا ہے. میرا خیال میں تو آپ نے غلطی کی، اسی بہانے اسے پتہ دے دیا. مجھے ڈر ہے کہ یہ بے وقوف کہیں چھپ کر نہ آ جائے اور آتے جاتے آپ کو نقصان نہ پہنچائے. مجھے دیکھ لینے دو، اس میں کتنی صبر کی طاقت ہے. رامین بیٹے، کہاں ہو تم؟ صبح سے اب تک 10 مرتبہ فون کر چکا ہوں مگر جواب نہیں ملا. تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تمہارا فون کسی اور کے پاس ہے؟ میرا دل بہت پریشان تھا بھتیجے. کیا ہوا بہادری کے اس مسئلے کا؟ کیا تمہارے بابا سے طے نہیں ہوا تھا کہ اس سے بات کریں گے اور تم چیک لے کر اس کے گھر جاؤ گے؟ چچا جان، سچ یہ ہے کہ میں ان دنوں بہت پھنسا ہوا تھا کہ سوائے بابا کو لانے لے جانے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا کہ دفتر جائے. کیوں؟ نہیں، بابا نے بہادری سے بات کی تھی، اس کو منا لیا ہے. شاہین؟ مجھے کچھ نہیں کہا بھتیجے. ہم اس کے دفتر کے سامنے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ فون پر بہادری سے بات کر رہا ہے، جیسے اس سے معافی مانگ رہا ہے اسی چیزوں کے بارے میں، مثلا چیک، اور کہہ رہا تھا کہ سب مسئلے حل کر دے گا.
रामीन बेटे, मसला क्या है? शाहीन ने उससे माफी मांगी और कहा कि खुद मसला हल कर लेगा। चाचा 1 मिनट होल्ड कीजिए। हे खुदा, शाहीन पर लानत हो, इतना झूठ बोलता है। चाचा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। देखिए, शाहीन को दरअसल कुछ नहीं पता। न तो ये कि बाबा ने बहादुरी से बात की है, शाहीन वहां नहीं था। मुझे बताएंगे क्या कह रहा है? क्या कहना चाहते हो बेटा? यानी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा भाई हमको धोखा दे रहा है? उस वक्त उसे नहीं पता था कि हम वहां हैं। नहीं चाचा, मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन धोखा दे रहा है आपको, नहीं। देखिए, मेरा मतलब ये है कि शायद शाहीन ने डॉक्टर या किसी और से गलत बातें सुनी है और गलत समझा है। झूठ कहाँ चाचा। बहादुरी ने बाबा से बात की है और उसके बाद खुदा का शुक्र सब खैर से खत्म हो गया। दोनों ने बात तय कर ली है। हाँ, अभी सिर्फ ये रह गया है कि मैं डॉक्टर से चेक लूं और जाकर बहादुरी को दे दूं। लेकिन रामीन बेटे, अभी तो तुम कह रहे थे कि शाहीन को कुछ नहीं पता, तो बहादुरी को कैसे पता कि वो तुम्हारे भाई से बात कर रहा था? अरे, आपकी शर्ट का बटन टूट गया है, अभी लगा देती हूँ। छोड़ो, तुम्हारी बातों से मुझे यकीन आ गया है। अगर ज्यादा पूछगछ की तो तुम्हारे भाई की गीबत हो जाएगी। हां, शायद क्योंकि शाहीन उससे माफी मांगना चाहता है। शायद उसकी वजह यह हो कि उसकी मुश्किल हल हो। ओह, क्या ओहो आहा करने के बजाय थोड़ा उसकी इज्जत का ख्याल कर क्या लो। उसकी इज्जत का ठेका आपने लिया हुआ है ना? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा इसी तरह खुश रहो चचा की जान। मुझे पता है रामीन बेटे कि तुम फंसे हुए हो, लेकिन तुमको अपने चचा की कसम उसको भूलना नहीं। ये पैसे उस बंदे खुदा को जल्द अज जल्द दे दो उसके हाथ में, बल्कि एक काम करो कि जल्द मसला हल हो जाए। मुझे पता है तुम भी नहीं कहना। तुम इत्मीनान रखो कि मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। आप कुछ न कहें, ये किस तरह की बातें हैं? अच्छा चाचा, बस अब मुझे इजाजत दीजिए। मामा को मुझसे कुछ काम है, मैं चलता हूं। जाओ, खुदा तुमको खैर दे। जाओ, मां के पास पहुंचो। इंशाअल्लाह खुदा इस काम को मुकम्मल करवाए और तुम्हारा काम भी मुकम्मल हो। खुदा हाफिज। खुदा मौका देता है आपको कि किस तरह उनके लिए दुआ करते हैं। ये बार मेरे कांधों पर से उठा लो। अगर तुम होती तो एक लंबे अरसे तक दुआ करती। बहादुरी को राजी करना अहम है कि वो कुछ कह ना सके। बस तो फिर अच्छा है कि आप उनको ना बताओ। इन बातों से मुझे आपके भाई के बेटे पे शक हो गया है। अभी क्या हुआ, बहादुरी के पैसे लौटा दिए या देने जा रहा है? अरे खुदा माँ बाप को बख्शे, अगर पैसे दिए हुए होते तो सुबह से अभी तक परेशान नहीं होता। अब तुम चाहे शक करो या चाहे ना करो, जब वो कह रहा है कि मैं फंसा हुआ हूं तो फंसा होगा। अहम यह है कि उसके बाबा या वो खुद बहादुरी को नर्म और सख्त तरीके से राजी कर सकते हैं। बस सिर्फ यही। अगर बहादुरी को देखूं तो उसे ना कहूं कि क्यों उसको सख्त कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। दादा जान, ना जाएं कल तक आप सजदा शुक्र में ही रहेंगे। मोमिन का सोना भी इबादत होता है। आपको चाहिए आप आज सिर्फ अपनी कल की इबादत करें। अच्छा ठीक है, मैं उससे कहता हूं। शर्मिंदा कर दिया। ये कौन कौन सी सब्जियां ले आई आप? ये मुनिस कौन है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचू, चाचू। अरे भाई, कितनी गहरी नींद सो रहे हैं चचा जान। चाचू, अकरम साहिबा परेशान हो रही हैं। बाद में चिल्लाएंगे कि जगाया नहीं। अगर अफ्तार के वक्त काम पे जाएंगे तो क्या बाहर खाएंगे? बाहर जाओ बदमाश कहीं की। माफ कीजिए, क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? मुझे पहले ये बताओ, ये कौन सा रोजा है जो तुम रखती हो? बताओ ड्राइंगबाज। मुझे ये बताओ कि खुदा की रज़ा हासिल करेगा? ये कहां तक सही है कि एक जवान दूसरे जवान को नाराज करे और खुद किसी से दिल लगाकर बैठ जाए?
चचा जान, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ख्वाब में कौन से जानवर देखे हैं? कर लो मजाक दीना साहिबा, मजाक करना चाहिए। तुम लड़कियां किस कमाश की होती हो, जो खुद पसंद आए और अपने बाप के घर में रहती हो तो रोती हो, और अगर उस तक रसाई ना हो तो हाथ खींचने को तैयार नहीं होती। कभी घर और गाड़ी नहीं है, कभी कहती हो नमाज रोजा नहीं करता। मसला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी नामहरम के साथ बैठती हो और किसी को पता ना चले? खुदारा मैं कहाँ जाऊं? चचा जान, शाहीन ने रोद होके आपके सर में डाल दिया कि आप मेरे पास आके मुझसे पूछें कि मैं किसके साथ बैठी हूँ। वो नहीं चाहता कि किसी से रोद होके कुछ मालूम करवाए शैतान। मैंने खुद उससे बात की है। इस तरह की नमाज और रोजे को खुदा कबूल नहीं करता। आपने बहुत बड़ी गलती की है चचा जान। इस दुनिया में कितने ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ रोने की वजह से अपने माल से महरूम हुए हैं और रोते रोते ही खुदा तक पहुंच जाते हैं। यानी तुम कबूल करती हो कि कोई और तुम्हारे दिल में उस लड़के के अलावा है जिसकी वजह से नहीं का जवाब दिया है? सही है। मुझे एक दोस्ताना नसीहत करने दीजिए चचा जान। अगर कोई और है भी या नहीं, ये शाहीन बेचारे इन लोगों में से नहीं है जो नमाज रोजा करके कुछ हासिल करें। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ना? अरे 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 अरे, यानी तुम सोच रही हो कि मैं अपने भाई की बेटी को बदनाम करने के दर पे हूं ताकि खुद कुछ हासिल कर सकूं? बहुत बेगैरत हो तुम दीना। मैं बेगैरत सही, लेकिन आप मुझसे नहीं बुलवा रहे। सिर्फ ये कहूंगी कि अगर अभी तक शक होता तो आपकी बातों से यकीन आ जाता कि वो खुदा खुदा करना और झूठा झूठा बहादुरी से माफी मांगना सिर्फ इसलिए था कि मैं और दादाजान वहां मौजूद थे। और आपको भी इस बात का पता है। मेरी बात गौर से सुनिए आप, और कुछ ना कहें और चाहे ना सुने, और सब जाकर उसको बता दें। वो उन पर ड्रामा करना भी नहीं आता। शुक्रान लिल्लाह, शुक्रान فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. मूसा से कहा, अपनी नजरें उस तरफ करो जहां जाना है और शैतान को अपने दिमाग से निकाल दो। فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. इसके बाद अक्लमंद आदमी से कहा कि अगर मैं आपकी शागिर्दी में आऊं तो क्या आप अपना इल्म मुझको सिखाएंगे? तो उस आदमी ने कहा, तुम सब्र नहीं कर सकते। किस तरह सब्र कर सकता है इंसान अगर उसको पता ना हो? मूसा ने दोबारा कहा, खुदा के वास्ते मुझे सब्र तहम्मुल सिखाइए, मैं कभी आपकी मुखालफत नहीं करूंगा और हरगिज किसी भी बात में आपकी मुखालफत नहीं करूंगा। मूसा ने कहा, ये वही सही काम है जिसको हम करना चाहते हैं। तुम यहां क्या कर रही हो?
अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम, ये तुम हो? एक साहब शायद काशानी नाम था, उन्होंने यहाँ का पता दिया था। खैर हो इंशाल्लाह, कल मैं दुकान आऊंगा। आइए अंदर आइए। शुक्रिया, जहमत नहीं दूंगा। मेरा मकसद आपसे सिर्फ वो किताब वापस लेना था। किताब? मेरे बाबा का कुरान हाजी साहब। लेकिन मैंने अभी तक उसकी जिल्द नहीं की है। कोई मसला नहीं, मुझे दे दीजिए, मैं ले जाऊं। यकीनन आप उसका मुआवजा चाह रहे होंगे। कितना हुआ बताइए? 20 तुमान काफी है? 20 तुमान, 30 तुमान, 35 तुमान, मेरे ख्याल में बहुत है आपके लिए। तुम्हारे बाबा ने तुमसे क्या कहा है? बाबा ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस इतना कि आकर वो किताब वापस ले जाऊं। मैं इस किताब को वापस नहीं करूंगा, मगर यह कि मुझे पता चले कि क्या है कि मेरी जहमत का अजर सिर्फ चंद स्या नोट हो, वापस नहीं करूंगा जब तक मुझे उसके आखिर में लिखे कलमे का राज नहीं पता चलेगा। मुझे कुछ नहीं पता, बस आप मुझे ये पैसे ले लीजिए। नाउज़ुबिल्लाह। देखो जवान, अगर तुम ये राज मुझे नहीं बताना चाहते या तुमको नहीं पता तो मुझसे वापस क्यों ले रहे हो? मुझे अपने बाबा से तो मिलने दो, मैं खुद उनसे पूछ लूंगा। यकीनन कोई ख्वाब देखा होगा, मैं खुद जाकर उनको वापस कर दूंगा। तुम अगर इस कुरान का राज नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, सिर्फ मैं जानना चाहता हूं कि मेरी क्या गलती है कि मेरे काम का बस यही अजर हो और इस दुनिया में मेरा हिसाब होगा। तुम मेरे बाप को देखने की ताकत नहीं रखते। क्यों? तुम्हारे वालिद अगर कोई ख्वाब पर भी हो गए तो मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे कहो अपना नूर थोड़ा कम करें, अपनी हैबत कुछ कम करें, मुझे कपड़े पहनने तो मैं आता हूं। सब्र करो, शराइत है कुछ। गुलाम हूं तुम्हारा, सिर्फ इस रात मुझे दे दो, अगर कल आओ तो कुत्ते की तरह मारना। दूर हटाओ अपने हाथ, पिछली दफा भी तुमने यही कहा था और लेकर चले गए थे। दबाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हारा गुलाम हूँ, दरवाजा बंद नहीं करो, खुदा के लिए तुम्हारा नौकर। दरवाजा खुलवा कर क्या करना चाहते हो? आपका गुलाम हूँ। बोलो, जवाब दो। गुलाम हूँ, आपको आपकी कसम आज ही अपनी बेटी के हुकूक लेकर आपसे मामला साफ कर लूंगा। लानत है उस पर जिसने तुझको मेरे घर का पता दिया। तू कुत्ते से भी ज्यादा खबीस है। तू यहाँ क्यों आया है? खड़े हो जा, अपने काम से दबाओ जा। गुलाम तेरी मरे कमीने जानवर, जानवर। क्यों इसके माँ बाप को गालियां दे रहे हो जलील? पैसे चाहिए? क्यों पैसे चाहिए? उन पैसों से अपनी कब्र बनाना चाहते हो? हाँ? ये लो, कम है? ये लो, बस है। ये सब 1 महीने के लिए काफी है। अगर सबको एक ही जगह खर्च करना चाहते हो तो तुम्हारी कब्र जल्दी तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत जनाब आपका। रुको जरा, क्यों उसे पैसे दिए? तुम शर्म नहीं आती? क्यों उसे पैसे दिए? फिस्क फजूर के लिए? अगर देना ही चाहते हो तो किसी मुस्तहिक को देने थे। इतनी जल्दी मेरी शर्त भूल गए बूढ़े आदमी। गुलाम हूँ, फिर गुलाम बना लो। सुबह नहीं हुई लेकिन तुम्हारे लिए पैसे ले आया। बोलो ताकि तुम्हारी दे दो बेटा, मुझे दे दो। अपने पैसे लो और वापस जाओ। नहीं, इस दफा माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। किसी भी काम पर कुछ नहीं कहूंगा, बस चुप होकर देखूंगा। तय नहीं हुआ था कि जो कुछ देखोगे और सुनोगे सवाल नहीं करोगे? दरवाजा खोलो। एक मौका, बस एक मौका और दे दो। दरवाजा खोल, तेरे लिए पैसे लाया हूँ। अपना लाशा कहीं और नहीं ले जा सकते? तुम्हारे लिए पैसे लाया हूँ, अभी सुबह नहीं हुई। ये लो पैसे। दो मुझे, वो भी दो मुझे, पिछले वाले भी मुझे दे दो।
आहिस्ता नहीं चल सकते। मैंने कहा था कि कोई खाफ पर भी होंगे तो आऊंगा, लेकिन इतना तेज भी नहीं। चलें, सांस आ गई दोबारा। खड़े क्यों हो? कुछ हुआ क्या? एक ताजा सांस लो, मैं आता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दोबारा क्या करना चाहता है? माफ कीजिए, क्या वक्त हुआ है? बहुत शर्मिंदा हूं, घड़ी नहीं है मेरे पास। जाकर इसके बीवी बच्चों को बताए। चलें, काम खत्म हुआ। रुको रुको, तुम्हारी माँ तुम्हारे खम में बैठे। क्या क्या चले हुरमुला, क्यों उसे मार दिया यजीद? मैंने खुद देखा था कि तुमने उसे धक्का दिया था। तुम कौन हो? तुम आदमी हो या शैतान? कुछ देर पहले इस कुरान के साथ तुम्हारे बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। तुम कौन हो? क्या तय नहीं था कि तुम आगे से कुछ नहीं बोलोगे? बोलूंगा मैं, अगर मेरी बातें भी तुम्हारी तरह हो जाएं। यानी एक नशे को पैसे क्यों दिए, गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा? मैं बस ये कहूँ, सब अच्छा है इंशाल्लाह। मैं सिर्फ किताब खुदा की जिल्द करने के वास्ते चुप नहीं रह सकता कि अपनी आंखें और मुंह बंद रखो, तुम जो चाहो करते फिरो। वो नहीं मरेगा, सिर्फ चंद दिनों तक घर में रहेगा। ये मुझे दे दो। सच ये है कि मैंने बहाने में सिर्फ ये किताब तुमको जिल्द करने दी थी, लेकिन तुम इतने कमजोर हो कि हत्ता इस किताब के हामिल नहीं बन सकते। सच्चाई का कि इसके आयात पर अमल करो, तुम इसकी जिल्द करने के लायक नहीं हो। ये लो अपने काम का मुआवजा, और यहीं से वापस पलट जाओ अपने घर। खुदा के जाहिर बीन बंदे। मैं नहीं समझा। अब नहीं जाने या कसम और रोने का कोई फायदा नहीं। ये लो, सब खत्म हो गया। बाबा से मिलवाना तो एक बहाना था ताकि तुम्हारी जहादत और बंदगी की हैसियत तुम पर साबित करो, और तुमको इस कुरान की आयत पर अमल करने की एक फुर्सत दी थी। मैं अगर ये आदमी मर जाता या हत्ता अगर सुबह तक इसको अपने साथ घसीटता, तब भी तुमको अपने वादे पर कायम रहना चाहिए था। या उसी पहले वक्त से अगर इस्तात नहीं थी तो मेरे साथ नहीं आना था। आराम से रहो बूढ़े आदमी। अगर तुम शुक्र नहीं करते तो तुम भी उनकी तरह होते, जिनको पता ही नहीं चला कि उनसे यह किताब क्यों दी गई, जिनके दस्तखत इस कुरान के आखिर में होने चाहिए थे लेकिन नहीं। खुदा हाफिज। दे दो मुझे।
रुको तो, तुम्हें उस साहिब किताब का वास्ता जिसने मुझे छोड़ दिया, 1 मिनट रुको तो, कम से कम मुझे इन कामों की हिकमत तो बता दो। मुझे बता दो कि क्यों मैंने पैसे लिए मगर नहीं लिए। मैं एक जाहिल से ज्यादा नहीं हूं। कम से कम मेरे ईमान को मेरा जहल दूर करके कवी करो, फिर चले जाओ। उस नशे को जिसका नशा टूट रहा था, जो देखा कि उसे पैसे दिए हैं, जब भी उस पर तंगी आती है तो ये सोचता है कि अपनी बेटी का पैसों के किसी बूढ़े से रिश्ता करा दे, और इसी तरह हर महीने अपनी लड़की के हुकूक लेकर अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन इस महीने उसकी बेटी के हुकूक देर से मिलेंगे। वो गाड़ी जो देखी कि जिसका दरवाजा खुला छोड़ आया कि उसका चुराना आसान हो, एक मालदार आदमी जो मकरूज है और उसका कर्जखा उससे नाहक उसका माल हथियाना चाहता है। एक चोर आएगा जिसको चोरी करना नहीं आती, इस गाड़ी को ले जाएगा, बाद में परेशानी में फंस जाएगा और ये गाड़ी दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगी। और आखिर जो तुम्हारा जानने वाला था, एक आदमी को मारने जा रहा था जिसकी मौत अभी नहीं आई थी, मगर चूंकि वो अपने उस इरादे में कामयाब न हो सका, तुम ये बात नहीं जान सकते कि उसका उस बस में सवार होना सिर्फ उस आदमी की बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करना मकसद था। देखता हूं क्या हुआ, इधर आओ। दादा जान, आधे घंटे बाद अजान है, क्या अजान से पहले मस्जिद नहीं जाना चाहते? अरे बाबा कहाँ हैं अभी तक? जब रोटी मुफ्त मिलती है तो लंबी लाइन होती है। खुदा की पनाह क्या करूं, ये माह रमजान में लोग तनूर खरीद लेते हैं और अपने मरहूमीन को सवाब देते हैं। थक तो गई। इनका क्या किया जाए? पता है वो अपने महरूमीन के सवाब के लिए करते हैं। दादा जान, क्या तुम्हारे दादा जान को मस्जिद नहीं जाना है? अजीब बातें हो रही हैं। दादा जान, जाग रहा हूं। हाँ मैं देख रही हूँ कि मैं खुश हूँ। रो रहे हैं? दादा जान, क्या हुआ आपको? बाहर जाओ। मैं सो नहीं रहा था। قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا. दीना, जब मैं कुरान को चिल्त कर रहा था तो यही आयतें पढ़ रहा था। बस उस वक्त ये सोच कर सुनना हो रहा था कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। क्यों? जब मैं कुरान पढ़ता हूं तो कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है दीना, कोई मेरी तरफ नहीं देखता। दादा जान, कौन आपकी तरफ नहीं देखता? क्यों छड़ी की तरह लरज रहे हैं? जाओ दीना, जाओ बहादुरी को फोन करो, देखो
उसको मारना चाहता था। नहीं नहीं, जाओ जाओ, उस जवान लड़के को फोन करो जो अपने बाबा की किताब लाया था। जिल्द बनवाने के लिए फोन करो। मुझे पता करना है कि वो कौन था, वो जो इन सब बातों से बाखबर है, कौन था। जाओ नीचे जाओ, देखो कुरान अपनी जगह पर है या नहीं। अगर ले गया तो अगर नहीं ले गया, मैं जाहिर बैन में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा दीना, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा दीना।